کہنا کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ یا آرمی کی خواہش ہے یا صرف ایک ادارے کی خواہش ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. اس نے ایک خوف طاری کیا ہے ان ٹیررسٹ پہ، ان تنظیموں پہ، ان کے ہینڈلرز پہ کہ اب جسٹس ہوتا ہے اور اس میں سزا ملتی ہے، اور اس کی جو ہے وہ ایک افیکٹ سے ٹیررزم میں بھی کمی آئی ہے. اگر پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کر کے یہ رسپانسبلٹی ملٹری کورٹس کو جاری رکھنے کے آدمی کو دیتی ہے تو آرمی آرڈرز کے مطابق کام کرے گی. اٹ ہیز ٹو بی اے پولیٹیکل کنسنسس. فوجی عدالتیں فوج کی خواہش نہیں، قومی ضرورت تھیں. ان عدالتوں نے دہشت گردوں پر خوف طاری کیا، دہشت گردی میں نمایاں کمی بھی ہوئی. ملٹری کورٹس قائم رکھنے کے لیے سیاسی اتفاق رائے کرنا ہوگا. 4 سال میں ہمارے پاس 717 کیسز آئے، 646 کیسز جو ہیں وہ فائنلائز کیے. ان میں سے 345 کو ڈیتھ پینلٹی ہوئی اور صرف 56 ایگزیکیوٹ ہوئے. آرمی چیف ایک ڈیتھ پینلٹی کو کنفرم کرتے ہیں تو اس کے بعد انٹرنلی ود ان 40 ڈیز جس کو ڈیتھ اناؤنس ہوئی ہے وہ ملٹری اپیلیٹ کورٹ میں اپیل کرتا ہے. 4 سال میں 646 کیسز کے فیصلے. فوجی عدالتوں نے 345 ملزموں کو موت کی سزا سنائی، 56 کو پھانسی ہوئی. ملزموں کو صفائی کا موقع بھی ملتا ہے. میجر جنرل آصف غفور کی گفتگو. ہم نے ری ایٹریٹ کیا ہے اور ریزولوشن ہے ہمارے پارٹی کا کہ وہ جو سٹانس ہے ان کا ملٹری کورٹس کا اس پہ وہ قائم ہے. نو ٹو دا ملٹری کورٹس. دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے، یہ خوش آئند بات ہے، اور اگر کمی آئی ہے دیر از نو جسٹیفیکیشن فار ملٹری کورٹس. فوجی عدالتوں کے معاملے پر حکومت کی حمایت نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کا 2 ٹوک اعلان. سازشوں سے گھبرانے والے نہیں، 18ویں ترمیم پر حملے ناکام بنا دیں گے. اعلیٰ سطح اجلاس کے بعد جیال رہنماؤں کی پریس کانفرنس. بلاول بھٹو کا حکومتی فیصلوں کے خلاف ملک گیر عوامی رابطہ مہم کا فیصلہ. پہلے مرحلے میں سندھ سے اسپتالوں کی وفاق کو منتقلی کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. سیاسی حکمت عملی کے لیے کراچی میں اجلاس. قیادت کے خلاف مقدمات پر جیالے برہم. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت مانگ لی. بھارت باز نہ آیا، پھر سول آبادی کو نشانہ بنا ڈالا. ایل او سی کے کھوئی رٹا اور کوٹ قدیرہ سیکٹرز میں بلا اشتعال گولہ باری. وطن کے محافظوں کا ازلی دشمن کو منہ توڑ جواب. 3 بھارتی فوجی ہلاک، 2 زخمی، چیک پوسٹیں بھی تباہ. پاکستان کا امن و استحکام افغانستان سے جڑا ہے. مفاہمتی عمل کی حمایت جاری رہے گی. وزیر اعظم کی زلمے خلیل زاد سے گفتگو. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر ماریا فرنانڈا کی بھی عمران خان سے ملاقات. وزیر اعظم کا مسئلہ کشمیر کے حل پر زور. گستاخانہ خاکوں کا معاملہ بھی اٹھایا. پر چین اور ہم پلہ ہیں، ہم میں کوئی اختلاف نہیں. ہماری سوچ میں ایک بالکل ہم آہنگی ہے اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک نئی حد کو چھونے والے ہیں. سی پیک پر پاکستان اور چین میں کوئی اختلاف نہیں. کسی کو شک ہے تو ذہن سے نکال دے. باہمی تعلقات نئی حدوں کو چھونے والے ہیں. امن عمل کے لیے انٹرا افغان الیکشن ڈائلاگ ضروری. پاک امریکہ تعلقات میں بتدریج بہتری آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو. آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج اس کے اوپر رولنگ دیں، ایک ہاؤس کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں جو ود ان 1 ویک پورے معاملے کی جانچ پڑتال کر کے آپ کی خدمت پیش کرے اور ہاؤس کو جاننے کا موقع ملے. موہمن ڈیم کا ٹھیکہ دینے کی تحقیقات کا مطالبہ. عبدالرزاق داؤد کی کمپنی کو کانٹریکٹ دینا مفادات کا ٹکراؤ ہے. مانگے تانگے کا پیسہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر خرچ کیا جا رہا ہے. شہباز شریف کی تنقید. میری غیر موجودگی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بہت ساری باتیں کی، ان کا جواب میں پیر کو اسمبلی میں دوں گا. محمد ڈیم بنے گا بھی، شروع بھی ہوگا اور ختم بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. شہباز شریف غیر موجودگی میں بہت بولے، پیر کو اسمبلی میں جواب دوں گا. فیصل وابدہ کا رد عمل.
किसी का बाप भी मोहम्मद डैम की तामीर नहीं रोक सकता। सिंध हुकूमत गिराने का इरादा नहीं, विफाक मदद करेगा। काम ना हुआ तो मुराद अली शाह मेरी नेचर जानते हैं। वजीर आबी वसाइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम सिंध गवर्नमेंट को ना डीरेल कर रहे हैं, ना डिट्रैक्ट कर रहे हैं, ना गिराने की कोई साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, ना बनेंगे। एक सीट की भी अगर अक्सरियत है, 6-7 सीटें तो बहुत दूर की बात आप कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तो हमारी गवर्नमेंट गिरा सकता है, किसी का बाप भी वरना नहीं गिरा सकता। हम हलाल सियासत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि हमारी तनख्वाहें इसमें बढ़ाएं। सैलरी इतनी कम है और सारा दिन हमें काम करना पड़ता है। मेरी कमर रह गई है, I've got sciatica and I'm not able to rest. Our salaries need to be increased a little bit. बाकी असम्बलियों की तनख्वाहें देखें ना कहाँ तक पहुँच गई हैं, तो ये हक है। गरीब आवाम के मुंतखब नुमाइंदे भी गरीब। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल जमा। बुनियादी तनख्वाह 18,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए माहाना करने की तजवीज़। आसिफ सईद खान खोसा, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Justice of Pakistan, Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा अदलिया के नए सरबराह। सदर आरिफ अलवी ने 26वें चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। वजीर आजम की मुबारकबाद। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स और जजेस की भी शिरकत। बतौर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का पहला मुकदमा। मुनशियात केस के मुजरिम की सजा में कमी के लिए दरख्वास्त मुस्तरद। मुंसिफ आला की अदालत उज़्मा आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुकदमात की समाअत के दौरान शिमाली कब्रिस की सुप्रीम कोर्ट के सदर समेत गैर मुल्की मेहमान भी मौजूद। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत पीर के रोज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वजीर आजम की सजा बढ़ाने के लिए नैब की दरख्वास्त भी इसी रोज सुनेगी। कॉज लिस्ट जारी। 18वीं तरमीम के जरिए धोखा दिया गया। सूबों को इख्तियार मिले लेकिन बल्दियाती इदारों को नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में खिताब। जिस दिन उम्मीदें खत्म हो गई, हुकूमत से रास्ते जुदा हो जाएंगे। कुंवर नवीद जमील की तकरीर। जलसे में कारकुनों की भरपूर शिरकत। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का सूबे को नजरअंदाज करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। बीएपी के सेनेटर्स और अरकान असम्बली का इस्लामाबाद में इजलास। वफाकी हुकूमत से बलोचिस्तान से मुताल्लिक़ पॉलिसीज का असर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा। इत्तेहादी पंजाब हुकूमत से नाखुश। मुस्लिम लीग काफ के वज़रा के काम में मुदाखलत का शिकवा। सूबाई वजीर मादनियात अमार यासिर फट पड़े। इस्तीफा क़यादत को भिजवा दिया। महकमा एक्साइज सिंध में बड़ी बदउनवानियों का इंकशाफ। 50 से जायद एक्साइज इंस्पेक्टर की मुबैना तौर पर जाली डिग्रीज पर भर्ती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हटाए गए ऑफिसर्स को 4 माह में दोबारा तरक्कियां दे दी गईं। हुकूमत ने जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को एनओसी जारी करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर 1 माह में फैसले की हिदायत की थी। मुल्क भर में ठंड के डेरे। कई मकामात पर पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे। कोयटा में बूंदाबांदी, सर्दी बढ़ गई। आज कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। शदीद सर्दी की लहर। दुनिया के कई मुमालिक में जिंदगी ठिठर गई। तुर्की में बर्फानी तूफान में फंसे 4 अफराद को बचा लिया गया। अमेरिका में तूफान के बाइस मसरूफ शाहराह बंद। अस्सलामुअलैकुम।
आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की, जो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स फौज की ख्वाहिश नहीं, मुल्क की जरूरत थी। इन अदालतों ने दहशतगर्दों और उनके हैंडलर्स पर खौफ तारी किया। दहशतगर्दी में नुमायां कमी हुई। पार्लियामेंट ने कहा तो अदालतें काम जारी रखेंगी, लेकिन इसके लिए सियासी इत्तफाक राय जरूरी है। प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह किया कि 4 बरसों में फौजी अदालतों के पास 717 केसेस आए, 646 के फैसले हुए, 345 मुजरिमों को मौत की सजा सुनाई गई, सिर्फ 56 को फांसी हुई। लापता अफराद और दीगर मामलात का इन अदालतों से कोई ताल्लुक नहीं। टेररिज्म की एक वेव थी पाकिस्तान में, टेररिस्ट जो है वो गिरफ्तार भी होते थे, लेकिन इस दौरान जो हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम था वो टेररिज्म के केसेस को डील करने के लिए इफेक्टिव नहीं था। पार्लियामेंट ने डिसाइड किया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो बननी चाहिए, डेथ पेनल्टी रिवाइव होनी चाहिए। ये कहना कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो किसी या आर्मी की ख्वाहिश है या सिर्फ एक अदारे की ख्वाहिश है, तो ऐसी बात नहीं है। देखने की बात यह है कि क्या आज वो जुडिशल सिस्टम जो है वो मौजूद हो गया है। जो बाकी केसेस पड़े हैं, कुछ प्रोसेस में हैं, कुछ पेंडिंग है, तो क्या वो केसेस जो है वो लिए जा सकेंगे। 4 साल में हमारे पास 717 केसेस आए। मिलिट्री कोर्ट्स ने 4 साल में 646 केसेस जो हैं वो फाइनलाइज किए। इनमें से 345 को डेथ पेनल्टी हुई और सिर्फ 56 एग्जीक्यूट हुए हैं, और उसमें से भी ओवर 45 रद्दुल फसाद के दौरान जो है उनकी एग्जीक्यूशन हुई है। और वो भी एक प्रोसेस है। ये केसेस जो आर्मी है या जो फौजी अदालतें हैं ये खुद नहीं बनाती। ये लंबा साइकिल है जिसमें प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी से शुरू होता है, फिर फेडरल एपेक्स कमेटी जो कि MOI के अंडर है उसमें आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करके फिर मिलिट्री कोर्ट्स में जाते हैं। लेट्स से जब हम आर्मी चीफ एक डेथ पेनल्टी को कंफर्म करते हैं तो उसके बाद इंटरनली विद इन 40 डेज जिसको डेथ अनाउंस हुई है वो मिलिट्री अपीलेट कोर्ट में अपील करता है। हमारा जो मिलिट्री कोर्ट्स का सिस्टम है इसमें जिस तरीके से कोर्ट एक लगता है सिविल कोर्ट्स में, वही कॉम्पोजिशन डिफेंस काउंसिल में मिलता है, सिविलियन डिफेंस काउंसिल मिलता है, तो पूरा प्रोसीजर पूरा करके और उसको जैसे कि सिस्टम में किया जाता है। ना इसका लिंक मिसिंग पर्सन्स के साथ है, ना इसका लिंक इसके साथ है कि जी ये इसकी जरूरत जो है सिर्फ हमें है। इन अ वे इट इज गुड कि मिलिट्री कोर्ट्स ने तो अपनी पूरी दयानतदारी से, तनदेही से ये केस किए, लेकिन अगर उसमें कोई जुडिशियल प्रोसेस रह जाता है तो ये ओवरसाइट तो बहुत अच्छी है कि सिविलियन कोर्ट्स को देखती हैं और उसको एंडोर्स करती हैं। इसने एक खौफ तारी किया है उन टेररिस्ट पे, उन तंजीमों पे, उनके हैंडलर्स पे कि अब जस्टिस होता है और इसमें सजा मिलती है, और उसकी जो है वो एक इफेक्ट से टेररिज्म में भी कमी आई है। लेजिस्लेशन करना तो पार्लियामेंट का काम है। जब ये फर्स्ट टाइम बनी तो भी पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया, सेकंड टाइम जब एक्सटेंशन हुई है उसकी तब भी पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया। तो पाकिस्तान आर्मी का व्यू ये है कि दिस डिसीजन रेस्ट विद द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। शुड दे डिसाइड कि ये जरूरत है, एनवायरनमेंट देख लें, इसका इफेक्ट देख लें, हमारे लिए तो ये एक एडिशनल काम है। अगर पार्लियामेंट डिसाइड करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री कोर्ट्स को जारी रखने की आर्मी को देती है तो आर्मी ऑर्डर्स के मुताबिक काम करेगी, लेकिन आर्मी की ये सोलो डिमांड नहीं है कि ये होने चाहिए। इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल कंसेंसस डिसीजन कि जी कैसे करना है आगे। हम वो काम करेंगे जैसे कि पार्लियामेंट हमें बताएगी। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस कराची में होने वाली अहम बैठक में फौजी अदालतों में तोसी की मुखालफत कर दी है। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि इजलास ने CEC के फैसले की तौसीक की, जबकि फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि दहशतगर्दी में कमी के बाद फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसीक का कोई जवाब नहीं। हमने रीएटरेट किया है और रेजोल्यूशन है हमारे पार्टी का कि वो जो स्टांस है उनका मिलिट्री कोर्ट्स का उस पर वो कायम है। मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इंसानी हुकूक की बात की, तो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में नो टू द मिलिट्री कोर्ट्स। दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है, ये खुशाइंद बात है, और अगर कमी आई है देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर मिलिट्री कोर्ट्स, नंबर 1। और अगर कमी नहीं आई, गवर्नमेंट के दावे के बावजूद कमी नहीं आई, तो अगर मिलिट्री कोर्ट्स 4 साल में न कर सके तो ये 40 साल में भी नहीं कर पाएंगे। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पर समझौता न करने का ऐलान कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि PP कभी दबाव में नहीं आई,
जो इदारे विफाक सूबों से वापस ले रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस भुट्टो केस का भी जल्द फैसला करेंगे। जबकि फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि JIT रिपोर्ट से बिलावल भुट्टो का नाम ना निकालने पर नजरसानी में जाने या न जाने का फैसला वो कला करेंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले, साजिशों से घबराने वाले नहीं। PP रहनुमा कराची में इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 18th अमेंडमेंट के ऊपर जो उनका स्टांस है, जो पहले से स्टांस है, उस स्टांस के ऊपर उन्होंने रीएटरेट किया कि वो उस पर स्टैंड लेंगे और हर फोरम पे विदिन द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेकर चलेंगे। वो इदारे जो 18th अमेंडमेंट के तहत वो सूबों को दिए गए थे, उनमें से कई इदारे वापस लिए जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के ले रही है, उसको हम कंडेम करते हैं। चीफ जस्टिस साहब नए आज आए हैं, उनसे हम तवक्को करते हैं कि वो पेंडिंग केस जो है भुट्टो साहब का, उसका जल्द फैसला हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JIT और NAB इन किस्म के हथकंडों से हरगिज़ मरऊब नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सूबे के लिए हुकूमत को उससे मुतालबा करती है कि तुमने ख़ुद कहा था कि 100 दिनों के अंदर का ये एजेंडा था और हमें बड़ी सख्त तशवीश है कि इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अगर आप मुखलिस हो तो उसको फिल फॉर जनूबी पंजाब का सूबा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े तौर पर कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो एक मासूम बच्चा है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कमीशन के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। उसका नाम आपने क्यों, कैसे और किसके कहने पर ECL पे डाल दिया और JIT में डाल दिया? और आपने देखा कि तमाम मीडिया में रिपोर्ट किया गया, तो ओपन कोर्ट में ये बात हुई थी कि उनका नाम निकाला जाए, वज़ीर आला का नाम निकाला जाए। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जब आप ऑर्डर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ECL से निकालने का तो अहकामात मौजूद हैं, लेकिन JIT से निकालने के अहकामात मौजूद नहीं हैं। तो इस पर बड़ा ताज्जुब का इजहार किया। साजिश करने वाले साजिश करते रहेंगे, रोड़े अटकाते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत करती रहेगी। जबकि बिलावल भुट्टो ने हुकूमती फैसलों के खिलाफ मुल्क गीर अवामी राब्ता मुहिम का फैसला कर लिया है। पहले मरहले में सिंध से हस्पतालों की विफाक को मुंतकली के खिलाफ एहतजाज होगा, जबकि नून लीग समेत दीगर अपोजिशन जमातों को फौजी अदालतों की हिमायत न करने के लिए भी कायल किया जाएगा। इजलास में जयाले क़यादत के खिलाफ मुकदमात पर बरहम हुए और क़यादत से ईंट का जवाब पत्थर से देने की इजाज़त मांगी। बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के आला सतह इजलास की अंदरूनी कहानी। क़यादत ने वफाकी हुकूमत के गैर जमहूरी तर्ज अमल पर चुप न बैठने का फैसला किया है। फौजी अदालतों की हिमायत न करने और नून लीग समेत दीगर अपोजिशन जमातों को भी कायल करने का फैसला किया गया। इजलास में तय पाया कि बिलावल भुट्टो हुकूमती फैसलों के खिलाफ मुल्क गीर अवामी राबता मुहिम चलाएंगे। पहले मरहले में सिंध से हस्पतालों की विफाक को मुंतकली के खिलाफ एहतजाज होगा। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए अवामी राबता मुहिम चलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो ने जनूबी पंजाब के लिए जलसों और कन्वेंशन का शेड्यूल बनाने की हिदायत कर दी है। जियाले रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत से ईंट का जवाब पत्थर से देने की इजाजत मांगी, मगर उन्हें सब्र से काम लेने की तलकीन की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, सिंध के हस्पताल विफाक के हवाले करने के मुतालिक फैसला 18वीं तरमीम पर बराह रास्त वार है। इदारे सूबों से छीन कर विफाक को देने का मामला सिर्फ सिंध नहीं बल्कि तमाम सूबों का मसला है। बिलावल ने कहा कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो लापता अफराद और महरूम तबकात की बात करते हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की सदर मारिया फर्नांडा ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से अलग अलग मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया और गुस्ताखाना खाकों का मामला भी उठाया। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पूरे खित्ते के लिए बहुत अहम है।
प्राइम मिनिस्टर हाउस आमद पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की सदर मारिया फर्नांडा का वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पसमानदा इलाकों को बाइख्तियार बनाने के लिए मारिया फर्नांडा की कोशिशों को सराहा। एलामिया के मुताबिक हुकूमती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की सदर की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर भी दिलवाई और बताया कि भारत इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर आज़म का कहना था गुस्ताखाना कार्टून के मामले पर पाकिस्तानियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ऐसे इक़दामात ने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई। सदर जनरल असम्बली मारिया फर्नांडा ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा का कहना था पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। कश्मीर का जो मसला है वो एक मुतनाज़ा है और इनकी जिम्मेदारी ठहरती है कि इसकी पेशरफ्त में ये अपना किरदार अदा करें। बेपनाह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहाँ हुई हैं और ये भी आप जानते हैं कि आज जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर वायलेशंस हो रही हैं वो तवातर से हो रही हैं और जिस तरह से वहाँ असला जमा किया जा रहा है हमारे पड़ोस में, तो इससे खदशा है कि एक फ्लैश पॉइंट है और इस फ्लैश पॉइंट को एड्रेस होना चाहिए। मारिया फर्नांडा ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पूरे खित्ते के लिए अहम है। It is the responsibility of all members in every corner of the planet to respect and guarantee fundamental rights and the dignity of people. And these are the principles by which we stand as the United Nations. सदर जनरल असम्बली ने ख़वातीन के बुनियादी हुकूक के हवाले से इक़दामात खुश आइंद करार दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये भी कहते हैं कि सी पैक पर पाकिस्तान और चीन में कोई इख्तिलाफ नहीं। अगर किसी को कोई शक है तो वो इसे जहन से निकाल दे। अफ़गान अमन के लिए इंट्रा अफ़गान डायलॉग ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमरीका तालिबान नशिस्त के इम्कानात हैं। ये भी कहा कि पाक कतर ताल्लुकात का असर दोस्त ममालिक पर नहीं पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। कतर के साथ आपके दरीना ताल्लुकात हैं और ब्रादराना ताल्लुकात हैं। एक बहुत बड़ी कसीर तादाद पाकिस्तानियों की कतर में रहती है, पर चीन और हम पल्ला हैं, हम में कोई इख्तलाफ नहीं और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा से अच्छे थे और इंशाअल्लाह वो एक नई हद को छूने वाले हैं और किसी किस्म का अगर किसी को कोई वहम और गुमान है तो वो ज़हन से निकाल दे। मजीद इन्वेस्टमेंट्स के इम्कानात आपको दिखाई देंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उसमें मेरी नज़र में एक तब्दीली और एक बेहतरी जो है वो बतदरीज मैं देख रहा हूँ। इंट्रा अफगान डायलॉग जो है वो ज़रूरी है किसी रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को इस्लामी इत्तेहादी फ़ौज की कमान करने के लिए NOC जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 1 माह के अंदर राहील शरीफ के NOC के बारे में फैसला करने की हिदायत की थी। साबिक सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को बताया था कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को NOC वजारत दिफा ने जारी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत ने बाज़ाब्ता NOC जारी कर दिया है। राहील शरीफ ने गुज़िश्ता साल जनवरी में इस्लामी इत्तेहाद की कमान संभाली थी। अभी आपको बताएं कि भारत बाज ना आया, फिर सिविल आबादी को निशाना बना डाला। LOC के खुईरट्टा और कोट खतीरा सेक्टर्स में बिला इश्तियाल गोलाबारी की गई है। वतन के मुहाफिजों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भरपूर जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। भारतीय फोर्सेस की एक बार फिर LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। जवाबी फायरिंग में 3 भारतीय फौजी हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक भारत की जानिब से खोईरटा और कोट खतीरा सेक्टर्स में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में भारतीय फौजियों की हलाकत के साथ चेक पोस्टें भी तबाह हो गयी। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रोज खोईरटा सेक्टर में भी सिविल आबादी को निशाना बनाया था। फायरिंग से 1 शहरी जख्मी हो गया था। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.